Welcome to our channel, guys. Today we will be starting with the chapter Microbes in Human Welfare. This chapter is all about learning. After completion of every video, I will be providing you out with the PDF of today's video at a Telegram channel, and the link of the Telegram channel is provided in the comment box and even in the description box. Okay. In every video, I will be asking you few questions. You need to answer them in the comment box. And you need to learn the answer as well as the question simultaneously so that that particular question gets prepared. Okay, so let's start with microbes in human welfare. So first of all, our earth has three components of biological system. So the three major components of biological system on earth are macroscopic plants, macroscopic animals, and microscopic microbes. Now, according to NCERT, who are included as microbes? Microbes are bacteria, protozoa, fungi, viruses, viroids, and prions. And what are prions? Prions are proteinaceous infectious agents. Okay. Now, you need to answer me who discovered and viroids and when were viroids discovered. So, I have two questions. Who discovered viroids? And second, when were viroids discovered? Now, the next point is whether microbes are always harmful for humans. The answer is no. Microbes, if they cause disease, are harmful, whereas many microbes are very useful for human welfare. We will be discussing in this chapter about all the useful activities or all the usefulness of microbes in human welfare. Now, what is the habitat of microbes? So the answer is they are ubiquitous. Ubiquitous is, that is, they are found everywhere. In extreme to extreme conditions, they can be found where human life is nearly impossible. Like geysers. Geysers are what? Thermal vents where the temperature is as high as 100 degrees Celsius. You need to remember this. Water geysers. Hence, I have written it. Now, in this chapter, we will be covering 6 uses of microbes. First is microbes that are used in household products. Household products include curd, cheese, dough of idli and dosa. Fourth is bread. Fifth, toddy. Toddy is a traditional drink of South India. Sixth is for fermentation of certain food. The second use will be in production of industrial products. For industrial products, basically microbes are grown in large vessels known as fermentals. Okay, so examples of industrial products are alcoholic drinks, antibiotics, organic acids, enzymes, and bioactive molecules. Third use of microbe is in sewage treatment plants, that is STP. Okay. Fourth is biogas production. Fifth is microbes are used as biocontrol agents. ठीक है, basically pesticides and other chemical fertilizers, they cause a lot of harm to the environment as well as to the human beings also. So आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमने जो है केमिकल्स को हटा के जो माइक्रोब्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स भी जो है उनको यूज़ करना चालू कर दिया है इन फील्ड्स. ओके, सो दैट इज नोन एज बायो कंट्रोल एजेंट्स. जब हम पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगी अच्छे से. देन द लास्ट यूजेस, दे आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स. Now we need to cover few diagrams of NCERT. They are very very important. Okay, first is bacteria. Basically what happens is bacteria जो है they can be further classified on the basis of shape they have. ठीक है, अगर वो rod shape है then they are known as rod shaped bacteria. If they are spherically shaped then spherical shaped bacteria. अगर spherical shape है लेकिन 4-5 एक साथ रह रहे हैं तो स्टेफाइलोकोकस भी हम पढ़ते हैं. बस बेसिकली कॉकस बैक्टीरिया हो जाते हैं अगर दे आर गोल गोल इन शेप. ठीक है, तो पहला जो डायग्राम है, ये सारे जो है ये बैक्टीरिया के डायग्राम्स दिए हुए हैं. तो पहला जो डायग्राम है दैट इज ऑफ रॉड शेप बैक्टीरिया. द सेकंड आर स्फेरिकली शेप्ड बैक्टीरिया. एंड सी जो डायग्राम है दैट इज ऑल्सो रॉड shaped bacteria, but a single rod shaped bacterium has been shown with flagella. This is something which you really need to read once. उसके बाद है हमारे पास वायरसेस का डायग्राम. बेसिकली यहाँ पे हमें 3 वायरसेस पढ़ने हैं. जो पहला ए डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ये एक बैक्टीरियोफेज का है. अब बैक्टीरियोफेज क्या होता है? ऐसे वायरसेस विच अटैक बैक्टीरिया. ओके, द वायरसेस विच अटैक बैक्टीरिया और विच कॉज इन्फेक्शन इन बैक्टीरिया आर नोन एज बैक्टीरियोफेज. ठीक है, अब बैक्टीरियोफेज का जो ऊपर वाला एरिया है दैट इज हेड. देन बीच वाला सिलिंड्रिकल एरिया जो है दैट इज़ नोन एज कॉलर. उसके नीचे एक पिलर जैसा फिगर है दैट इज़ नोन एज टेल. टेल के नीचे आएगा प्लेट. प्लेट के नीचे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस है दैट आर नोन एज पिन्स. और जो बड़े बड़े पैर जैसे हैं स्पाइडर के, ठीक है, दे आर नोन एज प्रॉन्ग्स. जो बी डायग्राम दिया हुआ है दैट इज ऑफ एडिनो वायरस. अब एडिनो वायरस क्या होता है? ऐसे वायरसेस विच कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस. So adenoviruses are basically viruses which cause respiratory infection. So this is adenovirus. And this C figure is of rod-shaped viruses and the example is tobacco mosaic virus. ठीक है, तो जो ये हमारे rod-shaped viruses है, compact rod-shaped viruses, ये किसका फिगर डायग्राम दिया हुआ है? इट इज़ ऑफ TMV, दैट इज tobacco mosaic viruses.
ओके अब एक पॉइंट ध्यान रखना, बेसिकली जब हमें माइक्रोबियल स्टडी करनी होती है, हमें माइक्रोब्स के बारे में जानना होता है। अभी हमने पढ़ा कि माइक्रोब्स में इंक्लूडेड कौन कौन होते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स, ठीक है। इट इज़ कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू ग्रो वायरसेस एंड प्रोटोजोआ इन न्यूट्रिटिव मीडियम। सो बेसिकली फॉर माइक्रोबियल स्टडी, अगर हमें माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना है, हम लैब में क्या करते हैं ना, एक पेट्री डिश लेते हैं, उसमें हम न्यूट्रिटिव मीडिया प्लेस करते हैं, एंड इन न्यूट्रिटिव मीडिया वी ग्रो माइक्रोब्स। विच माइक्रोब्स? बैक्टीरिया एंड फंजाई। सो बैक्टीरिया एंड फंजाई आर रिलेटिवली ईजी टू ग्रो ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया अंडर फेवरेबल कंडीशंस इन लेबोरेटरी, ठीक है। सो दिस टू फिगर्स हैव बीन शोन, जिसमें हमने एक न्यूट्रिटिव मीडिया लिया है। न्यूट्रिटिव मीडिया में हमने इस वाले फिगर में, ए फिगर में हमने बैक्टीरिया ग्रो किया है। कौन सा बैक्टीरिया? स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है। एंड जो सेकंड फिगर है, इसमें हमने क्या लिया? न्यूट्रिटिव मीडिया में हमने फंजाई ग्रो किया है। सो दिस इज नथिंग बट फंगल कॉलोनी। सो दिस आर कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया एंड दिस इज फंगल कॉलोनी ग्रोन ऑन पेट्री डिश एंड न्यूट्रिटिव मीडिया। एंड ऐसा हम क्यों करते हैं? फॉर माइक्रोबियल स्टडी। ओके नाउ लेट्स टेक अ क्विक रिकैप ऑफ जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। फर्स्ट हमने बात की अर्थ की। तो जो अर्थ है, इसके बेसिकली 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम होते हैं। पहला है प्लांट्स, सेकंड है एनिमल, थर्ड इज माइक्रोब्स। ओके, क्या हमेशा माइक्रोब्स हार्मफुल ही होते हैं? द आंसर इज नो। इफ दे आर डिजीज कॉजिंग देन दे आर हार्मफुल। दे आर यूजफुल इफ दे आर यूज्ड इन ह्यूमन वेलफेयर। एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली अबाउट द यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ माइक्रोब्स। नाउ अकॉर्डिंग टू NCERT, माइक्रोब्स में कौन कौन से लोग इंक्लूडेड होते हैं? आंसर 6 चीज़ें होती हैं जो माइक्रोब्स के अंडर कैटेगराइज की जाती है। फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकंड इज प्रोटोजोआ, थर्ड इज फंजाई, फोर्थ इज वायरसेस, फिफ्थ इज वायरॉइड्स एंड सिक्स्थ इज प्रायॉन्स। प्रायॉन्स क्या होते हैं? दीज आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो वायरॉइड्स है, ठीक है, ये वायरॉइड्स किसने एंड कब डिस्कवर किया था? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था माइक्रोब्स के हैबिटेट के बारे में, कि माइक्रोब्स हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं। आंसर इज माइक्रोब्स जो है यूबिक्विटस इन नेचर होते हैं, दैट इज दे आर फाउंड एवरीवेयर, ठीक है। इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशंस को भी कोप अप कर जाते हैं एंड दे कैन सर्वाइव। लाइक एक्सट्रीम एल्कली कंडीशन ले लो या एसिडिक कंडीशन ले लो या थिक लेयर ऑफ आइस ले लो जो NCERT में दिया हुआ है, उसके नीचे भी, मतलब फ्रॉस्ट आइस हर जगह पे ये दिख जाते हैं। ऐसी जगहों पे भी मिलते हैं जहाँ पे ह्यूमन लाइफ का एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसमें से मैंने एक टर्म आपको याद करने के लिए कहा था, दैट इज गीजर्स। गीजर्स क्या होता है? दीज आर थर्मल वेंट्स जहाँ पे टेम्परेचर एज हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर मैंने बोला कि यहाँ पे हम बेसिकली इस चैप्टर को हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉडली, ठीक है, जहाँ पे हमें लर्न ही करना है कि माइक्रोब्स कहाँ कहाँ ह्यूमन यूज़ में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो यूज़ है दैट इज़ इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, उसमें भी हमने पढ़ना है कर्ड, चीज़, डो ऑफ इडली एंड डोसा। फोर्थ इज़ ब्रेड, फिफ्थ इज़ टॉडी, सिक्स्थ इज़ फर्मेंटेड फूड। सेकेंड इज़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इसमें मैंने कहा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए जब हम माइक्रोब्स यूज़ करते हैं तो हम इनको बड़े बड़े वेसल्स में ग्रो करते हैं, दैट आर नोन एज फर्मेंटर्स, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो 5 प्रोडक्ट हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हमें पढ़ना है, फर्स्ट इज़ एल्कोहलिक ड्रिंक्स, सेकंड इज़ एंटीबायोटिक्स, थर्ड इज़ ऑर्गेनिक एसिड्स, फोर्थ एंजाइम्स, फिफ्थ इज़ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। उसके बाद थर्ड यूज़ है इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में बेसिकली जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है ना, उसमें 2 प्रोसेस होती हैं, एक फिजिकल प्रोसेस होता है, सेकंड बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। तो जो माइक्रोब्स है पर्टिकुलरली बायोलॉजिकल मेथड में जो है यूज़ आते हैं, ठीक है। द फोर्थ यूज इज़ बायोगैस प्रोडक्शन, फिफ्थ इज़ बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड द सिक्स्थ इज दे आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो अब जो है हम इन डीप हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में भी हमें 6 चीज़ों के बारे में पढ़ना है बेसिकली। तो लेट्स स्टार्ट विद कर्ड, ठीक है। कर्ड जो है, कर्ड बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लैब यूज़ करते हैं। लैब इज़ नथिंग बट लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैब का एक एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। बेसिकली हम क्या करते हैं, एक वेसल में हम मिल्क लेते हैं, इनोक्यूलम के रूप में हम प्रीवियसली बनाया हुआ कर्ड 1 स्पून ही सही डाल देते हैं। अब ओवरनाइट हम जो है उसे छोड़ देते हैं। तो जो मिल्क में ओवरनाइट क्या करता है, इनोक्यूलम में लैब प्रेजेंट होता है, लैब विल ग्रो ओवरनाइट एंड इट विल कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स एंड कन्वर्ट द मिल्क इनटू कर्ड। नाउ हाउ इज कर्ड बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ? Why are we making curd from milk? There should be some importance. So the answer is it has 2 importance. First, curd is relatively more rich in vitamin B12 content, ठीक है। So basically जो लैब है वो कर्ड को विटामिन B12 कंटेंट में रिच कर रहा है, एनरिच कर रहा है, ठीक है। एंड द सेकेंड रीजन इज कि इन स्टमक लैब जो होता है हमारा, दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इट चेक्स द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, मतलब इट चेक्स द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। सेकेंड जो प्रोडक्ट है जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज चीज़। चीज़ इज़ द ओल्डेस्ट प्रोडक्ट जिसमें हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब चीज़ हर एक, हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ चीज़ होते हैं, जैसे स्विस चीज़ है, रॉकफोर्ट चीज़ है।
तो जो चीज़ में हम जब यूज़ करते हैं ना, तो चीज़ का जो भी कैरेक्टर, किसी भी चीज़ का जो कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर है, फ्लेवर है, टेस्ट है, जो उसकी स्पेसिफिसिटी है, दैट कम्स फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ माइक्रोब दैट वी यूज़ इन इट्स प्रिपरेशन, ठीक है। सो इसलिए मेरा फर्स्ट पॉइंट यही था कि जो भी चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर है, फ्लेवर है, टेस्ट है या स्पेसिफिसिटी है, दैट कम्स फ्रॉम द माइक्रोब्स विच वी यूज़ इन इट्स प्रिपरेशन, ठीक है। पहले चीज़ के बारे में हम जो बात करेंगे दैट इज स्विस चीज़। स्विस चीज़ आप सब लोगों ने टॉम एंड जेरी में देखा ही होगा, जेरी जिस चीज़ के होल्स के थ्रू भागती है, दैट इज़ नथिंग बट स्विस चीज़। अब स्विस चीज़ में कैरेक्टरिस्टिक आपने देखे होंगे बड़े बड़े होल्स। ये बड़े बड़े होल्स होते क्यों है? इट इज़ बिकॉज ऑफ CO2 प्रोडक्शन बाय द माइक्रोब, ओके। स्विस चीज़ के लिए या स्विस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक बैक्टीरियम हम यूज़ करते हैं दैट इज़ प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मानी, ठीक है। द नेक्स्ट चीज़ विच इज़ मैंशनड इन NCERT इज़ रॉकफोर्टाई चीज़। एंड रॉकफोर्टाई चीज़ के लिए जो है उसको हम राइपन करने के लिए एक फंजाई यूज़ करते हैं दैट इज़ पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। नाउ वन थिंग विच यू शुड रिमेंबर फर्स्ट कि स्विस चीज़ में जो बड़े बड़े होल्स है दैट इज़ बिकॉज ऑफ CO2। स्विस चीज़ इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरिया, ठीक है। स्विस चीज़ बनाने के लिए हमें एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करना पड़ता है। वही रॉकफोर्टाई चीज़ बनाने के लिए हमें एक फंजाई का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्विस चीज़ बनाने के लिए जो हम बैक्टीरिया यूज़ करते हैं दैट इज़ प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मानी। रॉकफोर्टाई चीज़ बनाने के लिए जो हम फंजाई इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज़ पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। सो जस्ट यू शुड नॉट ओनली रिमेंबर प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मानी, बट आपको ये भी याद करना है कि वो बैक्टीरिया है कि फंजाई है कि वायरस है कि वायरॉइड्स है, ठीक है। मतलब आपको याद करना है कि वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ है क्या। प्रोपियोनिबैक्टीरियम में बैक्टीरियम टर्म आ रहा है तो इससे ही आपको पता चल जाएगा कि वो बैक्टीरिया है। और इसमें भी पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, पेनिसिलियम सबको पता है यार, एंटीबायोटिक्स जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब उसे डिस्कवर किया था तो वो एक पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, ठीक है। एंड इट वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेनिसिलियम। तो आपको इसी से पता चल जाएगा यार पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई क्या होता है, इट इज़ अ फंजाई। तो आपको जस्ट ये याद करने के लिए एक टाइप ऑफ ट्रिक कह लो, ये था, ओके। जो अब हम थर्ड यूज़ पढ़ेंगे दैट इज़ डो ऑफ इडली एंड डोसा। तो आपने देखा ही होगा जब हमारे घर में इडली डोसा बनते हैं तो एक वेसल में राइस एंड जो भी चीज़ है उसका पेस्ट हम रख देते हैं ओवरनाइट के लिए। तो ओवरनाइट जब हम रखते हैं ना तो हमारे सराउंडिंग में, एयर में ऑलरेडी वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो कि इस डो को फर्मेंट करने वाला है। तो वो बैक्टीरिया अपने आप इस डो के अंदर आ जाते हैं एंड देन ओवरनाइट रखने की वजह से वो क्या करते हैं, इस डो को ऑफ डोसा एंड इडली उसको फर्मेंट कर देते हैं एंड दे आर फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। जब हम सुबह देखते हैं तो हम देखते हैं कि उस जो डो है उसका लेवल थोड़ा अप हो गया है, ठीक है। ऐसा किस लिए होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ CO2 प्रोडक्शन, ठीक है। जो पफ्ड अप अपीयरेंस होती है ना दैट इज़ बिकॉज ऑफ CO2 प्रोडक्शन। द फोर्थ यूज इज़ ब्रेड मैन्युफैक्चर करने के लिए हम एक ईस्ट यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज बेकर्स ईस्ट, नोन एज सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी जो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ऑलमोस्ट आस्क्ड इन और AIPMTs। मतलब आप अगर PYQs पढ़ोगे ना आपको बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लगेगा सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी के बारे में, ठीक है। तो जो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी है ये एक ईस्ट होता है, इसको हम बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं एंड साथ साथ हम ब्रूअर्स ईस्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज़ यूज इन ब्रूइंग इंडस्ट्री ऑल्सो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है। जब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे कि सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी जो है इट इज़ नॉट ओनली नोन एज बेकर्स ईस्ट बट इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रूअर्स ईस्ट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज जो आप ब्रेड है, ब्रेड में भी आप छोटे छोटे होल देखते हो, दैट पफ्ड अप अपीयरेंस और या दैट होल्स आर बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ CO2। द फिफ्थ यूज इज टॉडी। टॉडी इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रिंक इन साउथ इंडिया। नाउ टॉडी हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? बेसिकली गाँव में बहुत सारे हमारे पास जो है पाम ट्रीज़ होती हैं, ठीक है। अब ये जो पाम ट्रीज़ होती हैं इनमें जो है फार्मर या जो भी विलेजर है, ठीक है, वो क्लाइंब अप करेगा पाम ट्री में एंड वो वहाँ पे प्लांट में एक होल कर देगा। होल करने से क्या है ना, जो भी प्लांट सैप है वो सारा कलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे वो एक मटका टंगा देगा जिसमें हम प्लांट सैप को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो प्लांट सैप जब कलेक्ट हो जाएगा इस मटके में और एयर में हमारे ऑलरेडी एज मैंने कहा कि बैक्टीरिया प्रेजेंट ही होते हैं, माइक्रोब्स प्रेजेंट ही होते हैं, या माइक्रोब्स अंदर आएंगे इस मटके के अंदर और जो प्लांट सैप प्रेजेंट है मटके में उसको फर्मेंट करेंगे एंड दिस फर्मेंटेड प्लांट सैप इज़ नथिंग बट टॉडी। और ये कौन से प्लांट सैप की हम बात करें? हम बात करें पाम ट्री के सैप के बारे में। सो टॉडी इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथ इंडिया एंड इट इज़ नथिंग बट इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ plant sap of palm trees, okay. And the sixth is finally fermented food. The trick for it is BSF, border security force से याद कर लो। B for bamboo shoot, S for soybean, F for fish. So इन तीनों की fermentation से भी हमें product मिलते हैं जो हम खाते हैं and that is known as fermented food. So with this we have completed our first use, that is microbes in household products. So let's take a quick revision or recap of what we have studied till now. So in microbes in household products, the first product that we studied was curd, ठीक है। कर्ड बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लैब यूज़ करते हैं, दैट इज़ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसमें हम क्या है, मिल्क जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू कर्ड बाय ग्रोइंग लैब इन इट। लैब क्या करता है? कोगुलेट्स एंड पार्शली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। कर्ड इज रिच इन विटामिन B12 एंड इट ऑल्सो चेक्स द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। द सेकेंड वी स्टडीड वॉज चीज़। चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोडक्ट। हर एक चीज़ की जो कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर है, फ्लेवर है, टेस्ट है या स्पेसिफिसिटी है, दैट कम्स फ्रॉम द माइक्रोब विच इज़ यूज्ड इन राइपनिंग इट और इन प्रोड्यूसिंग
इन प्रोड्यूसिंग इट, ठीक है. फर्स्ट इज स्विस चीज़. स्विस चीज़ के लिए हमारे पास बैक्टीरिया यूज़ होता है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शारमानी. स्विस चीज़ में जो बड़े बड़े होल्स होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ CO2. द सेकंड इज रॉकफोर्ट चीज़. रॉकफोर्ट चीज़ में हम यूज़ करते हैं फंजाई, एंड द फंजाई यूज्ड इज पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई. द थर्ड वी स्टडीड इज डो ऑफ डोसा एंड इडली. The dough of dosa and idli is fermented by bacteria and the puffed up appearance is because of production of CO2. The fourth is bread. Bread के लिए हम use करते हैं baker's yeast, that is Saccharomyces cerevisiae, and the holes in bread are because of CO2 production. Saccharomyces cerevisiae is also known as brewer's yeast because it is used in brewing industry. Fifth is toddy. Toddy is a traditional drink of South India and it is prepared by fermenting the sap of palm trees. And the sixth is fermented food by BSF. B is bamboo shoot के fermentation से, S is soybean के fermentation से, and F is by fermentation of fish. That's all for today's video. In next video we will be discussing about microbes in industrial products.